اور رات کے اندھیرے کے اندر جو ہے اس کو پھر دوبارہ ہم نے بحال نہیں کیا. میڈیا نے 20 دن آپ کے دھرنے کی کوریج کری تھی, اسی کوریج کی وجہ سے آپ اقتدار میں آئے اور اسی کی سب قیمت ادا کر رہے, تو میڈیا پہ اتنی زیادہ فوکس مت کریں. میڈیا نے تو اپنا کردار ہر دور میں اچھا ادا کیا. پورا سوال ہی نہیں پورا میں نے پہلے کہہ دیا کہ میڈیا ہماری عمارت کا 5واں ستون ہے. میں نے چند پنڈت کی بات کی ہے, اس لیے جو ہے اس کو ہمیشہ جب بھی کوئی یہاں پر وزیر آئے, مشیر آئے, کوئی سیاسی لیڈر ہو, تو خدا را اس کی بات کا غلط جو ہے یا منفی اس کی بجائے اس کو مثبت طرف جو ہے وہ لے کے جائیں. میڈیا اگر ہمارے اوپر نہیں ہوگا, ہمارا احتساب کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے میڈیا. بتا دوں سر, آپ یہ بتائیے, آپ ہم سن رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے کہا کہ افسران کا طرز زندگی آپ چینج کریں گے, دیگر چیزیں دنیا بھر میں ریلوے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مسافروں کو, عوام کو سستا اور محفوظ سفر فراہم کرے اور سامان کی سستے نرخوں پہ تقسیم کرتے ہیں. اگر ٹرین ٹائم پہ نہ پہنچے اور مسافر, افسر تو پہلے بھی بڑے لگژری تھے, منسٹر بھی سویٹ میں رہتے تھے, بائیر آتے جاتے تھے, وہ تو اپنی کبھی انہوں نے سلوٹ بھی استعمال نہیں کی ہوگی میرا خیال. جبکہ اگر ماضی میں چلے ہیں تو وفاقی ریلوے محمد خان جنیدو بھی وزیر اعظم بھی رہے ہیں اور وہ ریلوے کے منسٹر بھی رہے ہیں, تو وہ ہمیشہ جو ہے ٹریول جو ہے وہ ریلوے کی سلون میں کرتے تھے اور جاتے ہوئے رکتے ہوئے جاتے تھے. اب وفاقی وزیر تو پی سی ہوٹل کے سویٹ میں رہتا ہے اور جہاز میں آتا جاتا ہے تو اسے ریلوے پتہ ہی نہیں. تو بنیادی نقطہ یہ آج بھی کراچی اور لاہور سے سنا ہے کہ کینسل کر دی گئی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مسافروں کو سہولت نہیں ملے گی تو ریلوے کا کیا کرنا؟ ہمارا انٹرفیس جو ہے, ہماری عزت جو ہے ہمارا مسافر اور ہمارا فریٹ ہے, جس کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اس لیے کہ آپ ادھر سے شروع کرتے ہیں, میں ادھر اوپر سے شروع کرتا ہوں کہ جس ملک کے اندر آپ کا ریلوے پچھلے 40-50 یہ ہے وہ بنیاد جس کی وجہ سے نہیں کر سکتے. 40-50 سال سے جو ریلوے جو انگریز بنا کے اتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کو پورے پاکستان کے اندر بنا کے دے گیا, اگر وہ 40 ارب ایوریج لاس کرتا ہے تو آپ کیا اپنی کلائنٹیج جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ پیسنجر ہو یا فریٹ ہو. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری سہولتیں عوام کے لیے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس وزارت میں نے کام کیا, اگر آپ پوچھنے وہاں میری پہچان وہ وزارت ہے, وہ سیکٹری ہے, وہ آفیسر ہے جو میں چھوڑ کے آیا ہوں. سائنس ٹیکنالوجی میں چلے جائیں, کیا کیا ہے, کیا خرچہ تھا. میں بھی باقاعدہ جہاز کے ذریعے آیا ہوں, لیکن اپنا کرایہ دے کے آیا ہوں, اور میں ریسٹ ہاؤس میں ریلوے کے رہ رہا ہوں, اپنا کرایہ دے رہا ہوں اس میں. اس لیے سب سے بڑا منصوبہ ریلوے کا, وہ دوسرے پہلے جو وفاقی وزیر تھے وہ 14 دسمبر کو اس کو چلا رہے تھے. وہ 14 دسمبر بھی گئی, نومبر بھی گئی, اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ کا حکم بھی گیا, جو ڈگروڈ سے لے کے نازم آباد تک ہے جہاں پر انکروچمنٹ بھی ہے, بلکہ سیوریج کی بڑی بڑی لائنیں ڈلی ہوئی ہیں. جو ریلوے کے نااہل افسران نے قبضے کروائے ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کر رہے ہیں کہ یہ ایسے تھوڑی اتنی آبادیاں بن گئی. کسی کو لٹکانے والی بات وزیر اعظم, آپ کے وزیر اعظم کہتے تھے میں لٹکا دوں گا, وہ تو ہمیں عوام کو لٹکا رہے ہیں اور کسی کو نہیں لٹکا رہے, اور گالیاں دینے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو رہا. یہ یہاں ریلوے جو ہے اس وقت بھی یہی صورتحال ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرینیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے لیٹ ہیں, اور پھر اس کے بعد کمپیوٹر آنے کے باوجود کسی اسٹیشن پہ جو ہے ای ٹکٹنگ نہیں ہے. یہ سارے نظام جو ہے آپ کہہ رہے ہیں میں اس سے جہاز سے آیا ہوں, یہ جہاز سے جیسے آئے ایسا جہاز والا کوئی کام ریلوے میں بھی کر دیں کہ یہ بھی اپنے ٹریک پہ چڑھ جائے. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہ ساری مثبت باتیں جو مجھے انشاءاللہ تعالی جو ہے ٹھیک کرنی ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا سب سے پہلے احتساب کیا جائے, دیکھا جائے کیا کر رہا ہوں. مجھے دوسروں کے گناہوں کے اندر جو ہے مہربانی کر کے نہیں پکڑیں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنا بڑا مافیا جو ہے کس کس نے ان زمینوں کو اور اس کے وسائل کو جو ہے ختم کیا. یہی میری آفیسر میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس ملک کی جائیداد کو اس ملک کے لیے آپ استعمال کرو, اپنے ویلفیئر کے لیے اور عوام کے ویلفیئر کے لیے استعمال کرو. کب تک یہ ملک پاکستان اپنے خزانے سے 40 ارب روپیہ ٹیکس والوں کا, غریب کا انڈائریکٹ ٹیکس سے آپ کو جو ہے پے کرتے رہے گا, اس کے اوپر اپنی شاہ خرچیاں جو آپ کرتے رہیں گے.
मेरी एक एक चीज के ऊपर नजर है। जितनी भी इंक्रोचमेंट है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मशकूर हूं, खासकर कराची के तनाजर से कि उसने बाकायदा तौर पे एक सर्वेलेंस की जबरदस्त किस्म की टीम रखी हुई है। मैं उन्हीं की मुआवनत से इंशाल्लाह ताला इस इंक्रोचमेंट को छोटा आदमी कोई नहीं करता। मेरी पुलिस, मेरे रेलवे के मुलाजिमीन और जो मैं ऊपर बैठा हुआ हूं, ये तीन मिलेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता बाहर से। इंशाल्लाह मैं जिम्मेदारी से आपको जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आज जितनी भी हुकूमतें आई, किसी ने भी मोटर बेस बनाए, हर एक ने एयरपोर्ट बनाए। ये देखिए, ये सवाल है। लेकिन कभी रेल की पटरी कहीं नहीं गई। ऐसे बहुत सारे इलाके जहाँ बस वालों की जान नहीं है, अगर वहां से आप ट्रेन वहां पहुंचा दिया जाए, आप क्या समझते हैं कि इससे रेलवे को फायदा हो सकता है? बहुत बड़ा सर, ये है सवाल आज का। मेरी अकाउंटेबिलिटी का ये सवाल है कि इस मुल्क के अंदर हमने 18 व्हीलर यहां से चलते हैं, ट्रक लेके जाते हैं, लेकिन हमने ट्रेन से फ्रेट को जो तबाह कर दिया। इसलिए हमारे अंदर से लोग उनके साथ मिले हुए हैं, जिसको मैंने खत्म करना है। ऐसे 11 मिलियन से 11 अरब सालाना से 22 अरब नहीं आएगा। मैं अपने अंदर जो माफिया है उसको इंशाल्लाह ताला खत्म करने जा रहा हूं। रेलवे के स्कूल हैं, हॉस्पिटल को आउटसोर्स करने की बात करें। आपसे पहले माजी में यही दोनों चीजें बहुत अच्छी चल रही है, स्कूल भी अच्छे चलते रहे और हॉस्पिटल भी अच्छे चलते रहे। एक ही इस तरह सारी चीजें आप आउटसोर्स करते चले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, इमरान खान साहब माजी में सारी चीज की मुखालफत कर रहे, पीटीआई के निजकारी की मुखालिफ रही है, अब क्या हुआ? सर, ये निजकारी नहीं है। आप जो है कोई चाय पीते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप दूध जो है अपने घर के अंदर क्या बकरी, गाय या भैंस जो है वो रखते हैं, या दूध जो है अवेलेबल है? सुन लो मेरी आप बात, आपकी जवाब। इसलिए मुझे बेहतर काम करने दें। मेरे दिमाग जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे है। कौन बेहतर, मेरा काम जो है आपके मुसाफिर को जल्द अज जल्द टाइम के मुताबिक जो है लेके जाना दूसरी जगह, आपके फ्रेट को जो है उसी हिसाब से लेके जाना। इस वक्त रेलवे पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, और जब मैं सच्ची बात करता हूं तो आप उसका बिल्कुल उल्टा जो है। मैं 1974 के अंदर लास्ट टाइम जब मैं रहता था यहाँ पे कराची में, हवेलिया से कराची आया था, और अब जब मैं वजीर बना तो मैंने रेलवे देखी, इसलिए कि ट्रस्ट नहीं था। रेलवे में सफर करना, यकीन करें, इतना जबरदस्त सहूलत का सफर है, लेकिन आम आदमी का ट्रस्ट नहीं कि कब पहुंचेगी। और जब मेरे साथ जो सफर कर रहे थे वो कह रहे थे कि खुदा का वास्ता मिनिस्टर साहब हर वक्त आया करें ताकि ट्रेन टाइम के ऊपर पहुंचे। अगर पंक्चुअलिटी में नहीं दूंगा आगे बिजनेस नहीं जाएगा। हमारा सामान गुम हो जाता है रास्ते से, कोर्ट में केसेस है हमारे खिलाफ। ये सारी चीजों पर मेरी नजर है। थोड़ा सा मुझे इंशाल्लाह ताला टाइम देंगे। स्कूल चलाना, मैं फिर कहता हूं, अस्पताल चलाना, अगर मुझे अपने वर्कर को बेहतर मेडिकल उसकी फैसिलिटी दे सकता हूं, उस अस्पताल को बेहतर तौर पर चला सकता हूं आप लोगों के लिए, जो मैं नहीं कर सकता और आज के कामयाब मॉडल भी यही है, तो मुझे क्या जरूरत है खुद चलाने की? सर, कराची सर्कुलर रेलवे सिटी स्टेशन से आगे स्टेशन तक आपने ट्रैक को क्लियर कर दिया। आप डेट ही कम आप अनाउंस कर रहे हैं, और दूसरा बुलाना एक्सप्रेस भी बंद पड़ी हुई है कोविड की बात से। सर, मुझे जरा जो जहां पे इस किस्म के ग्लिचेस हैं ना, जहां पे मुश्किलात हैं, उसको मुझे जरा थोड़ा समझने दें। जिस तरह मैंने कहा ना, मेरी कराची की आमद, ये आपकी अखबारें और आपका मीडिया इस बात का गवाह होगा कि मैंने कहा है कि नो टाइम, मतलब टाइम इतना नहीं जितना आप पीटीआई की हुकूमत जो इमरान खान को नहीं दे रहे कि दो साल और 4 महीने में अभी जो एहतसाब कर रहे हैं, जिसने 30 साल 40 साल किया है उससे नहीं पूछना। इसलिए मुझे जरा थोड़ा टाइम देंगे। मैंने आपको कहा है कि 11 अरब सालाना से इंशाल्लाह 22 अरब से ज्यादा बगैर नई वेगन लेने के, बगैर नई जो है वो कोचेज लेने के इंशाल्लाह ताला मैं फ्रेट को आगे ले जाऊंगा, और कोचेज के अंदर जो है जो रेवेन्यू उसको अप्रूव करूंगा। आपकी जो चोरी, थेफ्ट, इंक्रोचमेंट हो रही है, खुदा के फजल से खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इसको बहुत कम इंशाल्लाह ताला करूंगा। 3 ममालिक शामिल है, 3 ममालिक नहीं बल्कि आपके पूरे सेंट्रल और सदर्न स्टेट जो है, रशियन स्टेट जो शामिल है,
बहुत बड़ा ट्रेड ब्यूरो इसकी वजह से आपका गवादर जो है, जो भी प्रॉस्पेक्ट थे ये इंशाल्लाह ताला डबल हो जाएंगे। इसलिए ये मंसूबा हमारे लिए बहुत अहम मंसूबा है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमने अपील की कि 4.5 बिलियन जो है वो दे। आरडी उज्बेकिस्तान में मजार शरीफ तक अपनी लाइन ले आए हैं, ये भी मैं आपको खुशखबरी दूं। उज्बेकिस्तान ने अपना बुनियादी काम कर दिया है। अब मजार शरीफ से काबुल और काबुल से पेशावर में हमने जो है इंशाल्लाह ताला इसको कनेक्ट करना है। सर, ये बताइएगा कि के हवाले से आप बताएं क्या हुआ, कब्जा क्या हुआ था, और दूसरा ये बताइएगा कि पुलिस, रेलवे पुलिस जो है बहुत कम है। जब भी इंक्रोचमेंट के लिए या दीगर जगहों पे रेलवे अफसरान जाते हैं तो पुलिस की नफरी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मदामत का सामना करना पड़ता है। तो रेलवे पुलिस के हवाले से बताइएगा कि नफरी जहाँ पे खुला है उसको आप पूर्ण कर रहे हैं नफरी। सर, इसके साथ एक सवाल और भी जोड़ लीजिए कि अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जा होता रहा है। अभी जो तिजोरी टावर पे जो कब्जा हुआ, इसका फैसला आ गया, उसकी जो रिहाइश की जिन्होंने बुकिंग कराई थी लाखों करोड़ों रुपए की, उनका क्या बनेगा? रूल गार्डन की रिहायशी आज भी रुल रहे, उनका क्या बनेगा? और पुलिस जो है वो कब्जा कराने से पहले उनकी चौकीदारी भी करती है, और जब ऑपरेशन होता है तो उनको पहले ही कर दी जाती है। इसका जवाब जो है मैं बिल्कुल इस तरह दूं, ये दोनों का सारों का एक ही जवाब है। इसका जवाब ये है, खासकर इस किस्म के जो नाजायज कब्जे जो है हमारे, मैं पहले कहता हूं कि सरकारी अफसर, मिनिस्टर, जो पॉलिटिकल हायरार्की है, मिनिस्टर से मुराद पॉलिटिकल हायरार्की है, और रेलवे पुलिस मिलने के बगैर, इन तीनों के मिलने के बगैर कब्जा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह चोरी की गाड़ी किसी ने खरीदी है, चोरी की गाड़ी जब पकड़ी जाएगी, असली मालिक जो है वो अपनी गाड़ी ले जाएगा, और जिसने भी पैसे खर्च किए हैं वो सारे जो है इंशाल्लाह ताला हाथ बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान की रेलवे की जमीन का एक एक इंच मैं उसका इमानतदार हूं। ये जिम्मेदारी मुझे मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने दी है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि कब्जा माफिया का नाका बंद करूंगा। पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, इसी पुलिस से मैं काम लूंगा। नया आदमी नहीं लेके आने वाला, न मैं रेलवे में भर्ती करने वाला हूं, न मैं पुलिस में भर्ती करने वाला हूं। हम इंशाल्लाह ताला इनकी तनख्वाहें दे के, इनको रिवार्ड दे के, इनकी बेहतर एकोमोडेशन करके, बेहतर सहूलतें दे के, बेहतर ट्रांसपोर्ट दे के, इनको इज्जत दे के, प्यार दे के, इन्हीं लोगों से इंशाल्लाह ताला काम करेंगे। कल मैं शाबाश देता हूं अपनी रेलवे की पुलिस को। मुझे सियासी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिंध पुलिस बाकायदा तौर पे कहता हूं कि नाजायज कब्जा कराने में की पुलिस से ज्यादा सिंध की पुलिस जो इसके अंदर शामिल थी, और खुदा ताला का शुक्र है। फिर मैं कहता हूं कि अगर ऊपर डंडा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका अगर न हो, तो इन जमीनों को इस माफिया से, जो बड़े बड़े माफिया है, छुड़ाना ये कोई आसान नहीं है। इसलिए रेलवे का मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं सलाम पेश करता हूं रेलवे की पुलिस को, मैं सलाम पेश करता हूं अपने रेलवे के अफसरान को जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिनके ऊपर पथराव हो रहा था, और मैं सलाम पेश करता हूं अपनी एस्टेब्लिशमेंट को कि जिन्होंने पीछे से जो ये डोर हलाई, और जिसकी वजह से मुल्क की प्रॉपर्टी किसी आम आदमी की प्रॉपर्टी नहीं बनी, और इंशाल्लाह ताला इसको वागुजार कराएंगे। सर देखें, इसके लिए हम प्रोग्राम बना रहे हैं। एक बात तो यह ना कि काला पुल के ऊपर जो हमारी कॉलोनी है, वो कॉलोनी जिस हालत के अंदर है, मेरा ख्याल है मुझे बयान न करना चाहिए। इसलिए इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो अगर गरीब वर्कर जो है उसकी जिंदगी के अंदर हम कोई चेंज लेके आ गए, तो इंशाल्लाह ताला हकीकत चेंज। इसलिए आखिरी सवाल जी रेलवे हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सिंध गवर्नमेंट को दे दी गई है, सर उसके डायरेक्टर जो मालिक फारूकी था, उन्होंने एक प्लाटों की फाइल ना जाने कितने लोगों को फरोख्त कर दी, उसको रेलवे मुलाजिमों को पैसा लगा हुआ है ना सर, तो उनकी तरफ भी अगर एक नजर देख ली जाए और कहीं अच्छे से देखें जो बुनियादी बात है
कि जिस तरीके से ये हाउसिंग सोसाइटी का एक पूरा ग्रोह माफिया जो है जो डेवलप हुआ है, उसके अंदर हमारा इतना रोल है नहीं। मैं इसको देख रहा हूं, अभी जो है मेमन साहब से गाड़ी में मैंने बात की है कि उसको किस तरीके से उनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन बात यह है कि अब वो सूबाई हुकूमत के, और सूबाई हुकूमत आपको पता है कि मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए, तो अगर अपने लोगों को इंशाल्लाह जमीनों पर कब्जे होते हैं वो अफसरान की मदद से होते हैं, क्या कोई ऐसा अफसर आप निशानदेही आपके पास होगी? यानी बात है किसी अफसर को सजा देंगे ताकि आइंदा इससे पहले कभी ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे इंशाल्लाह ताला कि कभी तक याद करेंगे। इसलिए मेहरबानी करके मुझे बताएं कौन से अफसर उसके अंदर शामिल है। मैं खुद भी कर रहा हूं, मुझे बताएं पंडित है वो निशानदेहियां करते हैं, तो हमने निशानदेही हमारी निशानदेही हमें करें इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह।